आप लोग के लिए लेकर आया इज मैटर अराउंड अस प्योर. This is the chapter 2 of class 9 NCERT syllabus based. See, matter, as in we have studied in chapter 1, there are different types of matter, solid, liquid, gas, and plasma, Bose-Einstein matters. Yeah? This is chapter 2 on digital maths, part 1. See, they are asking, is matter around us pure? Means, see, many a times we use the word that is, water is pure. Suppose we use butter, that is ghee, that is pure, oil is pure. So do really they are pure? So let us talk about each and everything in this chapter. The contents of this part, that is part 1, is first of all pure substances. What are pure substances? Types of pure substances. Then mixture, types of different types of mixture, flow chart of all the different types of substances, difference between mixture and compound. These all things we are going to study in this part. Here, this is the chapter number 2 of class 9. So go through each and every topic properly so that you understand the basic concepts of the chapters. See, as I said, pure substance, we talk that salt is pure, we tell that ghee is pure or milk is pure, everything we talk about pure. But do actually they are pure? If you will ask any scientist, they will say that it is not pure. According to us, pure means without adulteration, उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है, कुछ नहीं है. क्लियर? जैसे कि अगर घी है तो प्योर घी है, उसके अंदर कोई किसी ने कोई मिलावट नहीं की हुई है. That what we think. Adulteration means मिलावट. तो वो अगर नहीं किया हुआ है तो हम लोग सोचते हैं कि इट इज प्योर. किसी सॉल्ट, उसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं है तो वो हम लोग सोचते हैं प्योर है. क्लियर? But according to scientists, if we think about milk also, milk is mixed with water, so it is not a pure substance, it is a mixture. So depending on scientists, there are different substance. though we consider, हम लोग सोचते हैं कि प्योर है, बट साइंटिस्ट के हिसाब से वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एकदम प्योर नहीं है. प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ single type of particles. In other word, a substance is a pure single form of matter. Clear? तो अब जैसे कि सपोज सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl. तो इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग मिक्सचर है, सो इट इज नॉट प्योर. हाँ, हम लोग कंपाउंड के तौर पे कंसीडर करें देन कंपाउंड इज प्योर, क्योंकि ये एक कंपाउंड है. ठीक है? क्योंकि कंपाउंड पूरा थ्रू आउट पूरा कंपाउंड एक है और उसका अलग ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, सब कुछ अलग है. ये सोडियम और क्लोरीन से अलग ही है टोटल. सो एज अ कंपाउंड इट इज प्योर. बट हम लोग फिर प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर दो सब्सटेंस का मिक्सचर है या कंपाउंड है. क्लियर? इट इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिक्सचर, लेकिन कंपाउंड है. सो साइंटिस्ट के हिसाब से उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिक्स है. अगर मिल्क है तो मिल्क के अंदर पानी मिक्स किया जाता है, it is added, so it is also not pure. Yeah? Example, iron, oxygen, हाइड्रोजन, ये पूरे प्योर एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इनको प्योर सब्सटेंस कहा जा सकता है. There are different types of pure substance. They are, first, as I said, on the basis of their chemical composition, there are two types of pure substance, element and compound. Clear? दो टाइप के प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, बट दे आर थ्रू आउट प्योर बिकॉज देयर केमिकल कॉम्पोजिशन इज टोटली डिफरेंट एंड दे आर शोइंग सेम केमिकल कॉम्पोजिशन ईच एंड एवरी पॉइंट. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. आपने अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा. दिस इज पीरियोडिक टेबल. up to now, up to modern periodic table, we have 118 elements found now. 118 एलिमेंट्स अब तक हम लोग को मिल चुके हैं एंड दे आर प्योर. क्लियर? मीन्स उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है. दे आर एलिमेंट्स. जैसे ऑक्सीजन है, इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दिस ऑल आर सिंगल टाइप ऑफ एटम्स. दे आर हैविंग सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, दैट्स व्हाई दे आर प्योर एलिमेंट्स. क्लियर? Element is basic form of matter that cannot be broken down into simple substance by chemical reaction. उनको और simple form में convert नहीं कर सकते. They are known as
elements. Clear? They cannot be converted or broken down into simpler substances by any chemical reaction. Suppose gold is there, we cannot break gold into two different components. Gold आप जितना भी ब्रेक करोगे वो हमेशा गोल्ड ही रहेगा. गोल्ड भले केमिकल प्रॉपर्टीज करो, फिजिकल प्रॉपर्टीज करो, व्हाटएवर, बट गोल्ड विल रिमेन गोल्ड. क्लियर? एलिमेंट्स कैन नॉर्मली बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. क्लियर? एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. आप लोग देख रहे होंगे ये पीरियोडिक टेबल. इस पीरियोडिक टेबल में ये जो ये जिगजैग येलो कलर का जो दिख रहा है, दिस येलो लाइन एलिमेंट्स, येलो लाइन के इस तरफ जो भी है सारे मेटल्स हैं, येलो लाइन के इस तरफ जो भी है दे ऑल आर नॉन मेटल्स. एंड दिस येलो कंपोनेंट्स, ये जो येलो लाइन वाले हैं एलिमेंट्स, दिस ऑल आर मेटलॉइड्स. क्लियर? सो लेट्स स्टडी अबाउट द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर? Clear? So first of all, metals you might have gone through and you might have studied about the different properties. So metals, they have luster, shine, means they are shining surface. देखो गोल्ड देख के आपके मन में आ गया होगा, ओहो इतना सारा गोल्ड अगर हमारे पास हो तो बस कुछ चाहिए ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही क्या. होगा पढ़ोगे तो और ज्यादा होगा. जस्ट गो थ्रू इट. क्लियर? सो दे हैव लस्टर मीन्स शाइन. मेटल्स हमेशा चमकते हुए दिखाई देते हैं. दे हैव लस्टर्स. देन दे conduct heat and electricity. Metals always conduct heat and electricity. Clear? They are ductile, can be drawn into wires. आपको पता है कॉपर के वायर्स बनते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स बनते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वायर्स बनते हैं. डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब उनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है. दे आर मेलिएबल मीन्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल्स आती है. क्लियर? सो दे कैन आर मेलिएबल इनटू थिन शीट्स. दे आर सोनरस, मेकिंग अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, मतलब आप मेटल को अगर हिट करोगे या मारोगे तो उनके अंदर से रिंगिंग साउंड आएगी. जैसे आप मंदिर की बेल समझ लो. क्लियर? हम लोग जाते हैं मंदिर में, बेल बजाते तो कैसे आवाज आती है, दैट इज द रिंगिंग साउंड. तो हिट एनी मेटल्स यू विल गेट अ रिंगिंग साउंड, सोनरस. एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम एक्सेट्रा. मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बाकी सारे तो है ये, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. दिस वर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. आप लोग को याद रखनी चाहिए. दिस विल बी ऑलवेज हेल्पफुल, सो यू शुड कीप इन माइंड. और ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट, हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक अ स्क्रीनशॉट, आपके पास रहेगा हमेशा. देन नॉन मेटल्स. क्लियर? नॉन मेटल्स आर टोटली ऑपोजिट. दे आर नॉन लस्ट्रस, दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन मेलिएबल, एवरीथिंग नॉन. दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के होते हैं. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. They are not lustrous, not sonorous or non-malleable. Example of non-metals are hydrogen, oxygen, iodine, carbon, bromine, chlorine. Here in non-metals, bromine is only the element या only the non-metal which is liquid at room temperature. यहाँ पे bromine, जैसे वहां पे mercury था metals के अंदर, यहाँ पे bromine में bromine is a liquid at room temperature. Clear? Now मेटलॉइड्स. सी some substance are there. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है. दे आर नोन एज मेटलॉइड्स. क्लियर? सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मींस दोनों के बीच की. दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. एग्जांपल्स बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा. दिस इज बोरोन. एक्चुअली इट लुक्स लाइक, वी डोंट नो व्हाट, you might be not knowing what boron is actually, but boron, silicon, germanium, they are semiconductors we say, or metalloids which are used. See, silicon and germanium are used in particularly photodiodes and all, everything for conduction and all. Clear? So these are the metalloids. Now we will move on to the pure substance, second part, that is compound. H2O. H2O is a compound with mixture of hydrogen and oxygen. Clear? Hydrogen have different properties, oxygen have totally different properties, but both combine to form waters, and water has different properties than hydrogen and water. So that's why it can be said as pure compound. Clear? A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. मतलब compound two or more elements से बना होता है, जैसे hydrogen and oxygen, they are made up of two elements. Two or more it could be, but here we are taking two, hydrogen and oxygen. They are chemically combined with one another in a fixed proportion. Means यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स चाहिए, ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए, तो वो फिक्स्ड है.
इट विल नेवर चेंज. वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला दैट इज H2O विल नेवर एवर चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. दे हैव द फिक्स प्रोपोर्शन. उसके अलावा अगर हमने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की तो वो पूरा टोटली चेंज हो जाएगा. इट विल बी टोटली डिफरेंट. एग्जाम्पल वाटर, सॉल्ट एक्सेट्रा. देन हियर कम्स मिक्सचर. व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर मीन्स सच थिंग्स जो, जैसे अब कंपाउंड्स में क्या होता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो जाती है, बट हियर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजिली and they don't have same chemical means totally different chemical, they show the chemical properties of their constituent particles. यानी मिक्सचर के अंदर दो जो भी चीज हमने मिक्स की है उन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, उसकी कोई अलग केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती. क्लियर? सो मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय वन और मोर देन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. वन और मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. क्लियर? उससे प्योर फॉर्म के मैटर का मिक्सचर होता है, कॉम्बाइंड होता है. एग्जाम्पल लेमनेड, नींबू पानी. सॉल्ट एंड सॉइल, दोनों का मिक्सचर. सॉल्ट अलग नहीं बोल रहा हूं, सॉल्ट और सॉइल का मिक्सचर. तो सॉल्ट और सॉइल को मिक्स कर दोगे लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सॉल्ट और सॉइल की सेम रहेगी, और कोई नया कंपाउंड नहीं बना रहे, दे आर जस्ट मिक्स्ड इनफ. क्लियर? सो एक्सेट्रा. नाउ मिक्सचर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. क्लियर? टाइप्स ऑफ मिक्सचर में कैसे होता है, जैसे होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस. लेकिन होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. जैसे कि सपोज होमोजीनियस जो है सॉल्यूशन, एंड हिट्रोजीनियस में आते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन, that we will discuss later on, but main part 2 types of mixture are homogeneous and heterogeneous. Clear? So here, depending upon the nature of component, there are 2 types of mixture: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. But homogeneous mixture, that is known as solution, or heterogeneous mixture, it is 2 types of solution: suspension solution or colloidal solution. We will talk about. See, first we will go for solution. Clear? अब homogeneous का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है थ्रू आउट यूनिफॉर्म. कहीं से भी कॉम्पोजिशन चेक करोगे तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगा. और हेट्रोजीनियस मतलब कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम. सो इट इज टोटली डिफरेंट. क्लियर? थ्रू आउट वो इक्वल नहीं होते, दे आर नॉट इक्वल एट ईच एंड एवरी प्लेस. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन. जैसे सपोज वाटर का सॉल्यूशन हम लोग सॉल्ट के साथ बना रहे हैं, शुगर के साथ बना रहे हैं, या फिर हम लोग नींबू पानी की बात करें, इट इज अ कंप्लीट होमोजीनियस मिक्सचर. क्योंकि नींबू पानी हर एंगल से हर पॉइंट पे इक्वल टेस्ट करता है, उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ जो है सब प्रॉपर मिक्सअप हो जाता है, एकदम क्लियर सॉल्यूशन हो जाता है. क्लियर? सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस. सॉल्यूशन कुड बी लिक्विड, सॉलिड और गैस. सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिक्विड ही हो, इट कुड बी सॉलिड और गैस. जैसे सॉलिड के अंदर आ जाता है अलॉय. क्लियर? अलॉय मिक्सअप होते हैं. और गैस के अंदर आ जाता है जैसे एयर, हमारी जो एयर है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस मिक्स है. सो वो पॉसिबिलिटीज है. जैसे सपोज लिक्विड है, सॉलिड सॉल्यूशन दैट इज अलॉय ब्रास, 70% कॉपर 30% जिंक. क्लियर? दोनों का कंबाइन होकर अलॉय बनाता है. लिक्विड सॉल्यूशन लेमनेड, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर, वाटर, लेमन एक्सेट्रा. गैस सॉल्यूशन एयर, मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस एक्सेट्रा. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ solution which can be solid, liquid or gas. Solution of both solute and solvent. solution में solute भी होते हैं, solvent होते हैं, जो कम अमाउंट में होता है. जब सपोज अगर हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है पानी के अंदर हम लोग सॉल्ट मिक्स करते हैं, नमक मिक्स करेंगे. सो सॉल्ट इज द सॉल्यूट. एंड अगर पानी जो है ज्यादा अमाउंट में है, क्लियर, तो पानी हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट. क्लियर? सो कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज सॉल्यूशन is called solvent, and component present in small quantity in solution is called as solute. ये चीज आपको याद रखनी है, small quantity and large quantity. Clear? Then example salt solution, जो जिसमें salt जो हो गया, मैंने बताया आपको solute, और water जो है solution. Properties of solution. First, a solution is a homogeneous mixture. As we know, homogeneous mixture मतलब throughout uniform रहता है, कहीं पे भी plus minus नहीं होता. Everywhere, each and every place, equal amount, uniform. The particles of solution are smaller than 1 nanometer, that is 10⁻⁹ meter. यानी बहुत छोटे होते हैं in diameter, so they cannot be seen by naked eye. इतने छोटे होते हैं कि हम लोग हमारी आंखों से देख नहीं सकते हैं कि वो particles है भी या नहीं है. Clear? Then, because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution.
सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, ये चीज याद रखनी है. The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when the left undisturbed, that is solution is stable. मतलब solute particles क्या है, कोई भी प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, यानी हम लोग फिल्टर करें या कुछ भी करें तो उससे इजीली निकल नहीं सकते, और ना ही सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो भी सॉल्यूशन के जो भी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं, वो नीचे बैठते भी नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कि सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है. एक चीज याद रखनी है, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, दे कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, क्योंकि उनके 1 नैनोमीटर से भी कम उसकी साइज होती है. साइज छोटी होने की वजह से द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, यानी वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते. क्योंकि अगर जैसे आपने देखा होगा एक अंधेरा रूम है, उसके अंदर एक छोटा सा होल है जहां से सनलाइट आ रही है, देन द होल लाइट पाथ इज विजिबल, दैट इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट. लेकिन सॉल्यूशन के अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं होती. देन सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, या फिर सेपरेट होते हैं, फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट नहीं होते हैं और सेटल डाउन भी नहीं होते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन को स्टेबल कहा गया है. दैट्स व्हाई सॉल्यूशन इज स्टेबल. क्लियर. नाउ अनदर मिक्सचर और कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग बात करें, जैसे ये तो सॉल्यूशन की थी, कंसेंट्रेशन मतलब कितना सॉल्यूट है, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, तो वो 3 तरह से हम लोग ढूंढ सकते हैं. The concentration of solution is the amount of mass or volume of solute present in the amount of mass of volume of solution. यानी कितना solute present है पूरे solution के अंदर, कितना percentage solute present है, that is known as concentration of solution. So mass by mass percentage of solution अगर देखना है तो mass of solute upon mass of solution into 100, ये याद रखना, mass of solute upon mass of solution into 100, ये फॉर्मूला है, ये मास बाय मास परसेंटेज के लिए. सेकंड आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम है. सो मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. फिर आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं. ये 3 फॉर्मूलाज हैं, नोट डाउन कर लो, प्रॉपर वे में रख लो दिमाग में. अगर पूछा जाए, जैसे इसके बाद में एक एग्जांपल बताऊंगा कि फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास, फाइंड आउट द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना होगा. व्हाटएवर इट इज आस्क्ड, जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना होगा, तो वो चीज ध्यान रखनी है. क्लियर. सो नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसी के बेस पे. सी अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. मास बाय मास. क्लियर. पहले तो देखो सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 40 प्लस 320 यानी 360 हो गया. तो पहले तो वो मेंशन करो. मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 320 ग्राम. तो सॉल्यूशन का कितना होगा, mass of solution that is mass of solute plus mass of solvent that is 40 plus 320 that is 360 ग्राम. यानी पूरे सॉल्यूशन का मास मिल गया, और हमको सॉल्वेंट का तो पता ही, सॉल्यूट का पता ही है. अब मास बाय मास का फॉर्मूला क्या आता है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सो 40 अपॉन 360 इनटू 100 दैट इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 11.1%. देखो आप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, बट यू कैन कैलकुलेट, आई नो इट्स बिट इजी. सो 11.1%. तो अगर कभी भी इस तरह के सम आए तो आपको सॉल्यूशन ऐसे करना है, याद रखना है. यहाँ पे मास बाय मास की जगह मास बाय वॉल्यूम पूछ सकते हैं, इट कुड आस्क वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. सो डिपेंडिंग ऑन दैट जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना होगा. यहाँ पे मास बाय मास पूछा था, दैट्स व्हाई वी हैव गॉन फॉर मास बाय मास फॉर्मूला. समझ में आया ना. नेक्स्ट जो सॉल्यूशन, देखो हमने मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर का देख लिया सॉल्यूशन. नाउ हेट्रोजेनियस मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं. दैट इज फर्स्ट सस्पेंशन सॉल्यूशन. देखो सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं इस तरह से, और अगर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए ना, इफ इट इज लेट अनडिस्टर्ब, तो वो सारा का सारा नीचे सेटल डाउन भी हो जाते हैं. दैट इज नोन एज सस्पेंशन सॉल्यूशन. सो लेट अस सी, ये एग्जांपल आपको दे सकता हूँ. वाटर, सॉइल अगर डाल दिया जाए पानी में
तो स्टार्टिंग में तो सस्पेंडेड रहेंगे, क्लियर, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दो उसको, पानी को एज इट इज, ट्राई करके आप, यू कैन ट्राई एट योर होम एज वेल, टेक अ जग ऑफ वाटर, पुट सम सॉइल, सॉइल फिर मिट्टी पत्थर वत्थर वाली मत डालना, नहीं तो तुरंत नीचे चली जाएगी, जस्ट सॉइल, लिटिल थोड़ा सा सॉइल डालना, फिर पूरा जग भर के सॉइल मत डाल देना, तो पता ही नहीं चलेगा। सो एंड मिक्स इट आउट, थोड़ी देर के लिए देखो तो वो सॉइल उसके अंदर देगा, फिर हमें उसको छोड़ दो एज इट इज, 1 2 3 4 घंटे के लिए छोड़ के साइड में रख दो। यू विल फाइंड आउट दैट सारी की सारी मिट्टी जो है नीचे सेटल डाउन हो, क्योंकि मिट्टी की वेट ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, सो दे सेटल डाउन एट द बॉटम। सो दिस इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। वो क्या होता है देखते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच the solid particles या solute particles do not dissolve but remain suspended। dissolve नहीं होते लेकिन suspended मतलब इस तरह से दिखाई देते, वो mix भी नहीं होते, दिखाई देते throughout the bulk of the medium, ये पूरे bulk में as it is रहेगा, so that is throughout the bulk of the medium, clear। particles of suspension are visible to the naked eyes, clearly दिखाई देते हैं, क्योंकि आप मिट्टी मिक्स करोगे तो भी दिखाई देगी clear particles। example soil mixed in water etc, clear, ये just example थे। now प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी सस्पेंशन सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन। सी ये रहा, पहले सस्पेंडेड रहे, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो सारा का सारा पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए। सो अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। The particles of suspension scatter the beam of light passing through it, makes its path visible। यानी अगर सस्पेंशन पार्टिकल है या सस्पेंशन सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने अगर टॉर्च लाइट डाली है तो उसके अंदर हमको लाइट का पाथ विजिबल होगा। क्यों? बिकॉज सस्पेंशन पार्टिकल जो है लाइट को स्कैटर करते हैं, उसकी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, वी कैन सी दैट पाथ, क्लियर। यानी टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या है? The properties in which the path of the visible light is seen, clear, path of the light beam is seen throughout the solution or through the mixture, clear। solute particles settle down when the suspension is left undisturbed, they can separate from the mixture by the process of filtration। when the particles settle down the suspension breaks and it does not scatter light anymore। देखो अब तो पहले सुनो, शांति से समझो। सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब अगर सॉल्यूशन जो सस्पेंडेड सॉल्यूशन है ये वाला, इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा एज इट इज, जैसे मैंने बोला था, तो सारा का सारा जो पार्टिकल्स है इस तरह से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये सस्पेंशन सॉल्यूशन पूरा क्लियर हो गया, क्लियर। उसको हम फिल्ट्रेशन से क्लियर कर सकते हैं, अलग से निकाल सकते हैं। अगर आप छानोगे इसको तो ये फिल्ट्रेशन पूरा अलग भी हो जाएगा। प्लस जब ये सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं तो सस्पेंशन ब्रेक हो गया, क्योंकि सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे आ गए। तो उसके बाद अगर आप टॉर्च लाइट अंदर डालते हो या उसके अंदर लाइट की बीम डालते हो तो पाथ विजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर अब पार्टिकल्स नहीं है जो उस लाइट को स्कैटर करे। सो नाउ इट डज नॉट शो एनी टिंडल इफेक्ट आफ्टर सेटलिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल्स जब सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बाद वो कोई भी सस्पेंशन शो नहीं करेगा, कोई भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्लियर। दिस वर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब थर्ड कौन सा रहा हेटेरोजेनियस मिक्सचर में? जो थर्ड पार्ट, जो मिक्सचर का थर्ड पार्ट है, दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे होता है पता है? ये ना ही सस्पेंशन में आते हैं ना ही सॉल्यूशन के अंदर, उन दोनों के बीच में आते हैं। एक तो उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमको हमारी नेक्ड आइज में, हमारी आइज से हमको दिखाई नहीं देते हैं, प्लस इतने बड़े होते हैं कि वो बीम की लाइट को भी स्कैटर करते हैं। बहुत अलग ही कैटेगरी के हैं ये दोनों, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में आते हैं। अ कोलोइडल इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज एंड अपीयर्स होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम लोग देख नहीं सकते, इसलिए हमको लगता है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल साइज इज सच दैट इट स्कैटर्स द लाइट, मतलब इतने बड़े तो हैं पार्टिकल की साइज कि वो लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं। इसीलिए देखो ये ट्रू सॉल्यूशन है पूरा, जो पार्ट ए के अंदर दिख रहा है ट्रू सॉल्यूशन, उसके अंदर कोई लाइट विजिबल नहीं है। और ये कॉलोइडल पाथ है, वो दिख तो सॉल्यूशन जैसा रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर जैसा रहा है, बट
उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो टॉर्च की लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए उसके अंदर देखो, उसके अंदर लाइट का पाथ विजिबल है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉलॉइडल सॉल्यूशन. और टिंडल इफेक्ट, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. एग्जाम्पल, डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक इन एयर. क्लियर. कभी भी नहीं फॉग होती, फॉग जैसा हो जाता है, तब हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं तो उसमें सबकी लाइट्स के पाथ विजिबल होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉलॉइडल सॉल्यूशन. एयर के अंदर वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन जैसा बनता है. क्लियर, समझ में आ रहा है? एक एक चीज ध्यान से समझो, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन. सी, फर्स्ट, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, इट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सेकंड, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कॉलॉइडल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज, वो दिखाई नहीं देते हैं. कॉलॉइडल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल. इतने छोटे हैं कि दिखाई नहीं देते और इतने बड़े तो हैं कि बीम ऑफ लाइट इज स्कैटर. समझ में आ रहा है भाई? ये तो ना ही सस्पेंशन में आए ना ही सॉल्यूशन में आए. दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कॉलॉइडल इज क्वाइट स्टेबल. देखो सस्पेंशन में तो क्या होता था, हम लोग उसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो सेटल डाउन हो जाते थे सारे पार्टिकल्स, लेकिन कॉलॉइडल में ऐसा होता नहीं है. अगर उसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज छोड़ देते हो तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, इसका मतलब वो स्टेबल सॉल्यूशन है. समझ में आया? हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को समझना. कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉलॉइडल, यानी किसके अंदर क्या मिक्स होता है, तो उसके बेस पे, जैसे डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस है और डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है. क्लियर, मींस लिक्विड जो है इसके अंदर गैस में डिस्पर्स, तो एरोसॉल, उसको बोलते हैं फॉग. गैस डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, तो सॉलिड जब अगर उसके अंदर जो गैस में जा रहा है, मिक्स हो रहा है, तो सॉलिड एरोसॉल, दैट इज स्मॉक. गैस अगर लिक्विड के अंदर मिक्स होता है, ये डिस्पर्जन मीडियम है जिसके अंदर मिक्स हो रहा है, और ये डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो पार्टिकल जिसके अंदर मिक्स हो रहा है. क्लियर. सो गैस अगर लिक्विड में जा रहा है तो फोम, दैट इज व्हाइट क्रीम, जो आप देखते हो शेविंग क्रीम एंड ऑल, दैट इज फोम. लिक्विड अगर लिक्विड में मिक्स हो रहा है, दैट इज इमल्शन, सलाद ड्रेसिंग. सॉलिड लिक्विड, that is सोल, पेंट. गैस into solid, solid form, cake. Liquid into solid, that is gel, jelly. Solid into solid, that is solid sol, colored glass. क्लियर, अलग अलग चीजें हैं, ये एग्जाम्पल के साथ हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल. क्लियर, नो इश्यूज. देन फ्लो चार्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. देखो पहले तो मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, जिसके अंदर प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं एंड मिक्सचर हो सकते हैं. क्लियर. अब प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं. एलिमेंट्स जो है कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज. और कंपाउंड्स में हैव फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ये सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा. और कंपाउंड के अंदर एग्जांपल है वाटर, मीथेन, सुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा. क्लियर, ये तो हुई बात प्योर सब्सटेंस की. अब मिक्सचर के अंदर मैंने बोला था होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस. क्लियर, होमोजीनियस दैट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यहाँ पे सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा. और यहाँ पे एग्जांपल आता है सैंड सॉल्ट, सुगर सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, ये सब. क्लियर. सो हमने देखे थे ये सारे के सारे, एक एक पार्ट को हमने अच्छे से समझे हैं. प्लीज गो थ्रू इट. जहां पे भी डाउट लगे आप पूछो, लेकिन हर एक चीज को पहले आप खुद समझने की कोशिश करो, प्रॉपर्ली एक एक चीज को देखो क्या है क्या नहीं. फिर उसके बाद क्वेश्चंस अगर रहते हैं, फिर भी डाउट रहता है, यू कैन आस्क मी. और पूछने में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं आता है तो ही पूछेंगे, बाकी कौन पूछता है, जबरदस्ती तो पूछ नहीं रहे. सो यू कैन आस्क, नो इश्यूज, वी आर ओवर हियर. बट देन टू पहले खुद को इवोल्यूएट करो कि हाँ मुझे ये चीज में क्या समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं, प्रॉपर, तो फिर प्रॉपर आंसर मिलेगा. नाउ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. अब मिक्सचर और कंपाउंड हमने देखा. आप बोलोगे कंपाउंड भी तो एक तरह का मिक्सचर है, लेकिन बहुत डिफरेंस है. क्यों? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. यहाँ पे सिर्फ मिक्सचर दोनों चीजों का, जैसे सॉल्ट और शुगर का मिक्स कर दिया, लेकिन कोई नया चीज नहीं बनी, सिर्फ मिक्स हो गए, भूल से गलती से गिर गए तो मिक्स हो गए, यूं समझ लो, या जानबूझ के मिक्स किए, लेकिन उससे कोई नया कंपाउंड नहीं बना. बट एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड. कंपाउंड कब बनता है? दो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते तब वाटर बन रहा है.
और टोटली न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मिक्सचर में कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है। मतलब भाई आपने 10 ग्राम शुगर डाली है तो 20 ग्राम सॉल्ट डाल सकते हो, 10 ग्राम शुगर डाली है तो 30 ग्राम सॉल्ट डाल सकते हो, कुछ भी चेंज हो सकता है, इट कुड बी चेंज, बट द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। कंपाउंड के अंदर हर एक सब्सटेंस का कंपोजिशन जो है फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। A mixture shows the properties of the constituent substance। मिक्सचर में क्या है, उसके अंदर सॉल्ट और शुगर मिक्स किया है अगर, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सॉल्ट और शुगर की शो करेगा। लेकिन कंपाउंड के अंदर जो सब्सटेंस नया बना है उसकी प्रॉपर्टीज टोटली अलग होगी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके वाटर बना है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में पूरी की पूरी अलग होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है, वो टोटली डिफरेंट होगी। क्लियर, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो या हैंड पिकिंग एंड ऑल, उससे आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। लेकिन द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, मतलब कंपाउंड को अगर अलग करना है तो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे, वरना वो सेपरेट नहीं होगा। जबकि मिक्सचर जो है फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकता है। क्लियर, दिस वाज ऑल इन दिस part of video. Now in next part, that is part 2, we will go through separating the components of the mixture and physical and chemical change. See, separating the components of mixture में बहुत सारे different तरीके हैं, 7 to 8 different types of methods है जिसके अंदर हम लोग compounds में से mixture को separate कर सकते हैं। mixtures को, हाँ, compound की बात नहीं कर रहा हूँ, mixtures को separate कर सकते हैं। जैसे cream from the milk या 2 miscible liquids है, उनको separate करना है। तो हर एक चीज को देखेंगे हम लोग पार्ट 2 में। सो नेक्स्ट पार्ट 2 का वेट करो, और टिल देन पार्ट 2 आए उससे पहले पार्ट 1 को इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपको पूरा पार्ट 1 प्रॉपरली आ जाए। क्लियर, सो थैंक यू वेरी मच एंड मूव ऑन एंड प्लीज कम अगेन। एंड प्लीज वन रिक्वेस्ट, आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, प्लीज दूसरों को भी ये वीडियोस शेयर करो ताकि वो भी ये चीज सीख सके, समझ सके, और उनकी क्लासेस में, उनकी चीज़ों में, उनके रेगुलर रूटीन में वो उसको समझ कर पढ़ सके और आगे याद कर सके। क्लियर, सो थैंक यू वेरी मच।